तो आपको खाली आप समय इन्वेस्ट करोगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक से पढ़ने की है कि आपकी पैसेंस होनी चाहिए, आप पढ़ेंगे केयरफुली, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग होता है, किसी स्टूडेंट को ये सब चीज़ याद रह गया, वो याद नहीं रहता है, किसी को उल्टा होता है, वो आप ही डिस्कवर कर पाओगे। और जो आप भूल रहे हो उसकी एक सेपरेटली स्लिप बना के आपको नोट एक तैयार करना पड़ेगा। कुछ आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद ऐसे ही याद रह जाएगा, होगा ही। अच्छा, फिर रिवीजन मांगेगा, बट फिर सो इट्स हैलोजन फैमिली। थोड़ा सा छोटा है, बट थोड़ा मैं बड़ा करके हो सकता है पढ़ाऊँ। नोबेल गैस तो काफ़ी छोटा है, पीछे वाला फैमिली काफ़ी छोटा है। ओके, सो क्या करूँ मैं इसमें? I'll introduce my members first. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. The word astatine comes from the word astatoge. Astatoge means unstable. There are around 19 isotopes of this element which are all radioactive. Hence the title astatoge or astatine. That is radioactive halogen excluded from all general discussion. Yeah. So पहला property पहला है, I'm not writing the electron configurations. You know the atomic number 9, 17, 35, 53, 85. नोबेल गैस से एक एक माइनस करके लिख दिया है। पहला पॉइंट, we are studying the general characteristics. Size increases down the group, you know this one. I am not going to write down that. Size decreases down the group, मैं नहीं लिख रहा हूँ। Ionization potential decreases down the group. Let me write down from electron affinity. Electron affinity is highest with chlorine, फिर bromine, फिर iodine. This is slightly an exceptional behavior. You must note one thing while studying electron affinity. क्लोरीन से बड़ा है, सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, फास्फोरस नाइट्रोजन से बड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। छोटे एटम ने चकमा दिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रूटीनली नीचे की तरफ कम हो जाना चाहिए, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हुआ। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हुआ। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हुआ। क्योंकि ये एलिमेंट्स छोटे होते हैं। छोटे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एडिशन कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर, क्योंकि इंटरनेट रिपल्सन को डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी। बीई लिख दो, आप चाहो तो थोड़ा इलाबोरेट करके लिख सकते हो। बॉन्ड एनर्जी कैन बी हाईली चैलेंजिंग। आप अगर याद नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। लुक एट द वर्ड, मैं भी बहुत केयरफुली याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कभी भी मैं भूल जाऊँ, फिर मैं बुक देखूंगा थोड़ा। जैसे ये बॉन्ड एनर्जी, you see bond energy of fluorine is very low, lower than even bromine, though higher than iodine. Smaller bonds are usually stronger bonds. In that way, fluorine should be a very strong bond because it's a very small bond involving small sized atoms. But when you have two atoms which have lone pair and your bond length is too short, these lone pairs will come very close to each other in space, and that repulsion can remarkably destabilize the bond, and that is the reason why fluorine has a lower bond energy, because of that lone pair. Nothing is symmetrical here, you can check. जो कि नॉर्मल एक्सपेक्ट हम करते हैं वैसा नहीं है। Owing to lone pair on fluorine, bond energy is lower than expected. जो सोचे थे आप इसे कहीं कम है, बट कम होके कहाँ जाके फिट होगा आपके ग्रुप के अंदर, ये तो जानकारी है। नेक्स्ट वन, पेज ऐड जोड़ो। Next point, physical state. Fluorine is a gas. Fluorine and chlorine are gas. ये दोनों गैस है at room temperature. Bromine is a liquid substance. Iodine is solid. The physical state.
at room temperature. Bromine is the only liquid non-metal. Yeah, bromine is the only liquid non-metal. कोई और liquid non-metal नहीं है room temperature में, कोई नहीं है और. Bromine is the only liquid non-metal. अच्छा, next, color. Color intensity increases down the group. Yeah, bromine, sorry, fluorine से बोलो, fluorine is colorless, fluorine is greenish yellow, bromine is reddish orange, iodine it's dark brown color solid substance, fluorine greenish yellow gas. Bromine is a liquid. ऑरेंज कलर वेपर बन सकता हूँ, अगर आप वेपर बना दोगे ऑरेंज कलर वेपर होता है. आयोडीन डार्क ब्राउन सॉलिड, डार्क ब्राउन सॉलिड, और यू कैन से वायलेट वेपर, वायलेट कलर वेपर. अगर हीट करोगे वायलेट कलर वेपर दिखेगा. हीट होने से वायलेट दिखता है, वेपर होने से वायलेट दिखता है. वेपर वेप लिख दिया मैंने. Why this color appears? Can you explain it? Is there any explanation? Yes. For that, you have to enter into MOT. Look. Color of substances can be explained using different theory. And sometimes, application of the theory itself can be extremely complex. Like for example, if you ask me, sir, how can you explain the color of permanganate ion? This can be extremely complex. But these are not such complex chemicals. They are merely elements. And it is fairly easy to explain their color. Hence, कभी-कभी हम ऐसे explanation उठा लेते हैं हाथ में. Tactfully design किया गया है syllabus. जो complex है जहाँ color explanation उन्हें नहीं बोला गया है. जो थोड़ा सिंपल है उन्हें बोला गया है. जैसे इसकी कलर के बारे में एनसीईआरटी में भी एक सेंटेंस है. क्या सेंटेंस है? Now you have to draw the molecular orbital diagram of a diatomic halogen like fluorine, fluorine. Consider fluorine, right? 1 1 1 2 2 1. I use this pattern. This makes my job extremely easier. मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. नहीं तो आप क्या करोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ड्रॉ करते फिरोगे, बहुत समय लगेगा आपको करने में. मुझे ऐसे लिखना बहुत इजी लगता है, तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको. ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग टू एस, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस, ये सिग्मा बॉन्डिंग जेड, ये पाई बॉन्डिंग एक्स और पाई बॉन्डिंग वाई, ये पाई एंटी बॉन्डिंग एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग वाई, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जेड. फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है. इनर कोर में 4 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन्स को आप भरोगे तो 2 4 6 8 10 12 14 हो गया. 14 हो गया इलेक्ट्रॉन. तो आपका ये जो ऑर्बिटल है इसे होमो कहता हूं मैं. होमो माने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये लूमो कहलाता है. लूमो, लूमो माने लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. By absorbing visible light and electron from HOMO to LUMO ट्रांजिशन हो सकता है. एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करेगा. अरे एब्जॉर्ब कैसा करेगा लाइट? लाइट एब्जॉर्ब के लिए उसके अंदर कोई एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए, जिस एक्टिविटी के लिए वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये एक्टिविटी है. तो लाइट का एक विजिबल पार्ट का एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करे तो आपको कलर दिखेगा. आई मीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है. सब्सटेंसेस विजिबल लाइट की कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करने की वजह से तुझे कलर दिख रहा है. कुछ कलर अलग होते हैं, एमिशन होते हैं. फ्लेम टेस्ट एमिशन कलर है. डिस्चार्ज ट्यूब, नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब की लाल रंग एमिशन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है वो. उसमें मुझे एनर्जी अप्लाई करना पड़ रहा है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके नियॉन मेरा रेडिस दिख रहा है. लेकिन ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है. ये विजिबल लाइट का एक पार्ट एब्जॉर्ब करने की वजह से कलर दिखाते हैं. वेजिटेबल की कलर जिस कारण की वजह से होता है, इनकी कलर भी उन्हीं कारण की वजह से होता है.
बिल्कुल उन्हीं कारण की वजह से होता है, बट वेजिटेबल में समझाना मुझे डिफिकल्ट है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कहाँ, बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना मुझे। वो बड़ा कलरिंग पिगमेंट होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, इस पे आसान है समझाना, बट फेनोमेना समान है। So I'll be writing color of halogens is because of absorption spectra that involves transfer of electron from this to this. बस मेरे साथ लिखिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा लिखिए, color of halogens is due to transition of electron from pi antibonding to sigma antibonding orbit. Sigma antibonding orbit. By absorbing visible light, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके वो कर देता है। तो हमने कलर के बारे में कुछ लिखा ना, अब ना मैं क्या लिखूं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे पहले चल रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे आगे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी लिखूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हाईएस्ट है फ्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। ना इट एट फर्स्ट साइट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स माय electron affinity, because from the electron affinity I know that fluorine has the highest electron affinity. If chlorine has highest electron affinity, it has the highest ability to accept the electron and to get reduced. If chlorine has the highest ability to get reduced, it should be the best oxidizing agent, but instead fluorine is the best oxidizing agent. Explain this. This can be explained by considering bond energy of fluorine and hydration enthalpy of fluorine. होता क्या है, कोई भी हैलोजन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करता है, वो जाता कहाँ है पता है तुझे? वो X-AQ बनाता है। ये गैस है, पानी के अंदर जाके वो यही बनाएगा। और ये पूरे प्रोसेस में अगर इस प्रोसेस को तोड़ू, माने माइक्रो स्टेप्स पे तोड़ू, पहले ये बनता है, पहले मॉलिक्यूल टूट के एटम बनेगा, फिर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनता है, फिर ये एनायन वाटर मीडियम में इसे बनाता है। इस स्टेज में क्लोरीन को जबरदस्त एडवांटेज है, क्लोरीन बड़ा अच्छा ये काम करता है, बेस्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस स्टेज में फ्लोरीन को जबरदस्त एडवांटेज है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। हम पढ़े थोड़ी देर पहले, बॉन्ड एनर्जी कम है। इस स्टेज में भी फ्लोरीन को जबरदस्त एडवांटेज है क्योंकि छोटे होने की वजह से जब अच्छा हाइड्रेट होता है। When you say electron affinity, you are referring to only that step where the atom in the gaseous phase accepts the electron. But when you say oxidizing ability, you refer to the entire process that involves gaseous halogen entering into water solution in the form of negative ion. When you consider the entire process involving 3 steps, fluorine is better than chlorine, and fluorine is the best oxidizing agent. Right on. थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा क्योंकि तुम भूल जाओगे। इवन दो electron affinity of chlorine is better than fluorine, but F2 is the strongest oxidizing agent. Owing to
low bond energy of fluorine and high hydration enthalpy of fluoride. चल कुछ तो सीखा. Next point. Next we'll talk about हाइड्रोजन हैलाइड. HF, HCl, HBr, HI इनके बारे में लिखेंगे, माने इनकी हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड. ठीक है, जैसा कि पहला है एसिडिक प्रॉपर्टीज. You know, HI is the strongest acid, followed by HBr. They're all in aqueous medium, and then HCl, and then HF. HI is the strongest acid. If you ask me, sir, which is most polar, HF is most polar. Yeah, because of high electronegativity difference between H and fluorine. A polar substance has highly developed charges here. With these highly developed charges, why doesn't it ionize more to release more H plus ions? Because since the bond is more polar, the bond has more ionic character, the compound should behave in an ionic way, releasing more H plus. Acidic strength will be highest for HF, but instead HI is. पता है क्यों? ये एनालिसिस गलत नहीं है, एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए, बट कोई एक पैरामीटर है जो कि कॉल ले रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है, और पोलैरिटी नहीं. अगर पोलैरिटी डोमिनेट करता है HF तरह स्ट्रॉन्ग गैस एसिड होता है. पता है कौन डोमिनेट कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी. इसकी बॉन्ड एनर्जी जबरदस्त है, टूटेगा ही नहीं, क्या आयनाइज करे. जैसे इस एक्सप्लेनेशन में डोमिनेट किसने किया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड. डोमिनेट नहीं किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन में कौन डोमिनेट किया? पोलैरिटी नहीं, बॉन्ड एनर्जी. प्राइमरी कॉज ऑफ दिस एसिडिटी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ HX. द वीकेस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI is the reason why HI is most acidic. There are other reasons, but this is the primary cause. अगर बोलोगे नहीं सर ठीक, मैं समझ में नहीं आया, then what I'll do, I have one nice tool, that is the tool of energy. I use that tool to explain lot of observations in chemistry. जैसा कि कैसा करो, तुझे लगा कि सर कुछ अच्छा समझ में नहीं आया, कुछ बताओ. तो मैं क्या करूँ, देख मैं स्टेप वाइज बढ़ूंगा. कैसे स्टेप वाइज बढ़ूंगा? देख, पहले HI एक्वेस को डिहाइड्रेट करा दे, गैस बना दे. अब ना इसे तोड़ दे, तोड़ के H गैस और I गैस बना दे. अब ना तो H गैस को बना H प्लस गैस, H प्लस गैस को अब एक्वाटेड कर दे. I गैस को तूने I माइनस गैस बना, I माइनस गैस को तो एक्वाटेड कर दे. अब तू पहुंच गया, देख आयनाइज हुआ है. यही तो तू लिखता है, HIAQ आयनाइज करके H प्लस AQ प्लस I माइनस AQ, यही तो तू लिखता है. मतलब यहाँ से तू यही लिख देता है. मैंने इस प्रोसेस को पूरा तोड़ दिया स्टेप वाइज. इसके अंदर ये सब माइक्रो स्टेप्स है. अब मैंने देखा एक स्टेप ऐसा है जहाँ HI को टूट के H एंड I बनाना पड़ रहा है. यहीं पे तो एनर्जी लग जाएगा मुझे, बॉन्ड एनर्जी. तो ये बॉन्ड एनर्जी जिसका कम है वो बड़ा आराम से टूटेगा. अदर फैक्टर्स आर देयर, आई अंडरस्टैंड, बट ये बॉन्ड एनर्जी अगर HF का बहुत हाई है और टूटेगा ही नहीं, बस वो पीछे चला गया. तो व्हाई आई एम सेइंग प्राइमरी कॉज, देयर आर अदर कॉजेस आल्सो, देयर आर अदर एनर्जी टर्म्स आल्सो, बट दिस इज द प्राइमरी रीजन. राइट. Bond energy is the primary cause of this observation. या इसी कारण से होता है, इसी कारण से साइड वाले ग्रुप में भी बिहेवियर देखने को मिलता है. प्राइमरी कॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन.
HF has high bond energy. अब कुछ और लिख रहा हूँ देखा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ना मैं भी याद कर रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट HI का ज़्यादा होगा, HF एकदम याद करके मैंने लिखा। मुझसे गलती हो सकता है क्योंकि मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो मुझे इस ट्रेंड को लिखने में हेल्प कर रहा है। लेट मी मेक माय पॉइंट वेरी क्लियर। मैंने पूरा याद करके लिखा, गलती हो सकता है बट नहीं है गलती, वो अलग बात है। बॉलिंग पॉइंट देख कैसा टर्न लेता है, तो देख HF हाइस्ट बिना जाने कैसे कोई करेगा बोल। मोस्ट वोलाटाइल एसिड HCl, मोस्ट वोलाटाइल एसिड HCl है। बॉइलिंग पॉइंट उसका -85 डिग्री सेल्सियस है, गैस है पूरा। मेल्टिंग पॉइंट में HF ज़्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ना 19 डिग्री सेल्सियस है, 19 डिग्री फेयरली है, ठीक है, हाइस्ट है। HCl की बॉइलिंग पॉइंट -85 डिग्री सेल्सियस है, गैस है पूरा। नेक्स्ट है कि रिड्यूसिंग एबिलिटी, ये सब बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। आई कैन इजीली गैस कि कौन बेहतर होगा, HI। अरे बाबा HF इतनी स्टेबल है, बॉन्ड एनर्जी इतनी अच्छा है, टूटेगा नहीं, जबकि चाहे आराम से टूटे तो H छोड़े तो खुद ऑक्सीडाइज हो तो दूसरे को रिड्यूस करता फिरे। इनफैक्ट इन तीनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव है। आओ स्टेबल कंपाउंड नहीं है, टूट जाता है बड़ा आराम से। हम हाइड्रोजन हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक प्रॉपर्टी, डाइपोल मोमेंट लिखना चाहोगे, लिखो डाइपोल मोमेंट। सबसे ज्यादा HF, हाँ ठीक है ना यार, HF ज्यादा बोला तो है। बस हम HX के बारे में पढ़ रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ओके, वाटर रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। वाटर रिएक्शन कैन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप बोलोगे इस पॉइंट में क्या पढ़ा रहे थे, मैं हेड यहाँ पे हेडिंग कुछ नहीं किया, HX लिख देता हूँ, HX मैंने मैं HX के बारे में यहाँ पढ़ा रहा था। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी सब था, HX के बारे में पढ़ा रहा था। अब मैं पढ़ाऊँ रिएक्शन टू वाटर। हम हेलोजन फैमिली की जनरल डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। Interesting. Fluorine reaction to water to produce HF and oxygen. Fluorine reaction to water to produce HF and ozone. You are not recommended to write them in one equation. थोड़े से ओजोन भी बना लेता है प्रैक्टिकली, बोथ आर फॉर्म, बोथ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ये WBJ का क्वेश्चन था, WBJ ऐसा पूछता है। एकदम फाइन पूछेगा इनऑर्गेनिक। आई माने शार्प आई अगर है पढ़ने के समय तो आप पकड़ लोगे उसके क्वेश्चन। फिजिकल पूरा एकदम पानी जैसा पूछता है, बड़ा इजी पूछता है, आई डोंट नो व्हाई, बड़ा इजी पूछता है फिजिकल। बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा पूछता है, मैंने देखा हूँ सालों से वही हाल। अच्छा क्लोरीन ऐसा हुआ, then what about chlorine and bromine react in a similar way. पूरा HCl and HClO बना लेता है क्लोरीन वाटर के साथ। What about iodine? Iodine gives reverse reaction.
that is not actually iodine, it's iodide. Iodide plus H plus oxygen, iodine plus water. तो देखेगा ठीक से ना तो तुझे फील होगा इस रिएक्शन के उल्टा लिखा है मैंने। इसे देख के लगता है जैसे आयोडीन को कोई इच्छा नहीं है अपनी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहने की, उसको कोई लगाव नहीं है अपनी नेगेटिव में, डिटैच फ्रॉम नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट, छोड़ देता है। एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेके थोड़ा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे ना, आयोडीन बना लेगा, HI पूरा आयोडीन हो जाता है। इसलिए लैब में कभी HI स्टोर नहीं किया जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ब्रोमीन भी करता है पर थोड़ा कम करता है। You have never seen HI in lab. ये था रिएक्शन विद वाटर। अब मैं सोचूं मुझसे क्या छूटा है, मैं थोड़ा बुक देख रहा हूँ, मुझसे क्या छूटा तो मैं देखता हूँ। वेट, मैं जनरल डिस्कशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। HF का थोड़ा स्ट्रक्चर बना देना उचित था मेरे लिए। अब मैं ऑक्साइड्स पढ़ाऊंगा, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। HF HCl HBr हो गया ना, HI हो गया। ओके, तो मुझे ऑक्साइड्स पढ़ाना है थोड़ा सा, और ऑक्सी एसिड्स पढ़ाना है। ठीक, इतना तो पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फ्लोरीन combines with oxygen to produce fluorides. इन्हें ऑक्साइड्स नहीं कहते क्योंकि फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव। दो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, O2F2 एंड OF2। इस कंपाउंड के बारे में क्लियर कर दो, थर्मली अनस्टेबल है ये। इसका OO बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन दैट इन H2O2, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन है। मुझे पढ़ाने के समय कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे लिखूंगा OF2। ये स्टेबल कंपाउंड है, ये गैस है, स्टेबल है, तो थर्मली अनस्टेबली डिकम्पोज कर जाता है O2F2। लेकिन इन्हें ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इन्हें फ्लोराइड कहते हैं, कंसिडरिंग दैट फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्लोरीन फॉर्म्स Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, 4 ऑक्साइड बनाता है क्लोरीन। ठीक है, ये this is a radical. Oh, I'm sorry. O2 radical है। ये कैसे समझ गया मैं? ये समझ गया, क्यों पता है? ये समझ गया इसे, इसके एटॉमिक नंबर ऑड है।
इसका ऑड हो इवन हो, 2 एटम है इवन हो जाएगा, तो टुगेदर इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन आने से वो रेडिकल हो जाएगा। तो ये समझ गया था मैं कि ये रेडिकल नहीं है, वो रेडिकल है, ये रेडिकल है। दिस इज a radical, right, that doesn't dimerize। radical usually dimerize कर जाते हैं, बट ये नहीं करता है, काफी स्टेबल है। अच्छा, they're all acidic oxides। and acidic strength increases। ठीक है, यहीं पे छोड़ूंगा मैं आपको। I'll take one more class, then we have